तो रुको, क्या करते हैं, देखते हैं जरा सा, ये पेंट है उसको यूज करके देखते हैं, थोड़ा सा ट्रायल मारते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या बालकों? हेलो। यस सर। नो सर। चलो चलो, हैं दिख रहा है ना? यस सर। दिख रहा है सर। ओके, यस सर। चलो ठीक। सो डेट इज 16 and 21. So the topic that I will be taking up is a classification. Just a minute, just a minute. Classification of signals. Now the broadly we are going to divide the signals into some classes, and the first class is continuous time and discrete time. Discrete time signals. Then second class is analog and digital signals. Third is a periodic and aperiodic. Signals. And another class is a energy and power signal. And power signal. एक और class deterministic and probabilistic. Signals. ठीक है? So these are the some of the classes of the signals. Or now these classes are like that ki maybe in some other book you may find means one or more less, one or two less, or means more classes, and maybe the same signals may be represented with some other name also, but overall the signals can be broadly classified into these 5 categories. Now starting with the first one, which is a
continuous time signal. So I have explained you again and again. So let me represent, or let me say, the CT. So because I will be using it again and again, and the DT, discrete time. Yes, so I will be frequently using it. So the continuous CT. So ये signal क्या है? So if I define it, so a signal xt is a continuous time signal if the independent अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एवरीवन इज just taking a note. So if you are not taking means you are not making means noting it down, तो आप क्या है कि आप जो है बड़ा अजीब सा फील कर रहे होगे, लग रहा होगा यार ये सब स्लो मोशन में चल रहा है। और अगर लिख रहे होगे तो आप जो है सो यू विल फील लाइक इन सिंक और इन सिंक्रोनाइज विथ योर टीचर। तो अगर आप बोर हो रहे हो, इसका मतलब अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो आप बोर हो रहे होगे पक्का। अरे यार टीचर धीरे धीरे पढ़ा रहा है, लिख रहा है, ठीक है। बट डेलिबरेटली, एज आई टोल्ड यू, डेलिबरेटली आई एम यूजिंग this whiteboard or blackboard teaching, so that the pace is slow, so that your understanding is good. Otherwise it is easy for me to share the notes and just do the annotation. So just deliberately, because you are very new to this department and you know very new to the technical courses, so it requires means ठीक है ना, ये T20 का पावर प्ले नहीं है, ठीक है ना, जाते एक साथ जो है चौके छक्के लगाना है। सो दैट्स व्हाई, ठीक है, I am using this mode. Okay, so I am expecting that everyone is taking notes. Okay, so a signal xt is a continuous time signal if the independent variable, and independent variable means the cases or the signal I am dealing, the independent variable is the time only. But maybe means if I talk in general term, this independent variable can be other than the time also. But yeah, of course, now we will be just restricting to only one independent variable, that is a time. And we are going to deal with the only one dimensional signal where there is only one independent variable, that will be t or n. The time will be represented as a t for continuous time. For discrete time it will be represented as a n. ठीक है, is a t is a continuous and signal is defined for all values of t, ठीक है। और आपने बहुत सारे सिग्नल्स देखे होंगे, करंट सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल और अदर सिग्नल। so some signal, so this is a time, this is the amplitude, ठीक है, this signal or maybe this signal, so any kind of signal, or maybe, so since I have the liberty I will be using it, this kind of signal, कोई बात नहीं, ठीक है, maybe this kind of signal, ठीक है, maybe this side also. so these are the अलग अलग नाम हो गए इसके, ये सपोज xt हो गया, ये yt हो गया, ये zt हो गया, ओके, हो गए। so they are different signals, ठीक है। okay, now you can just now give me some examples. now you have to search yourself, अभी क्लास के बाद सोचना, you just find some signals which will be fitting into this category, practical signals, maybe varying with time, or maybe varying with some other amplitude or some other independent parameters. so you have to find some good examples yourself after the class for
Okay. Now, so this is a continuous time signal, and the discrete time signal, as I have told you, that discrete time signals जो है, ये क्या सिग्नल हो गया, इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये देखिए मैंने पहले भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। सो दिस सिग्नल will appear new to you, and its treatment or analysis will be also new to you. So now this is represented like this one, or maybe other way to represent is capital N, like this also. ठीक है। Okay, so now what happens that if the signal that you have seen xt, जो अभी ऊपर हमने देखा, is defined at discrete times and the independent variable and the independent variable has only discrete values, ठीक है। signal is known as a discrete time signal, ठीक है। अब इसमें ये जो मेरा सिस्टम है, कुछ देखो, कुछ गड़बड़ी करके देखो इसका। अच्छा, अब फिर मैं अगर लिखूं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये, ठीक है। दिख रहा है क्या सब चीज? यस सर। हाँ चलो, ये अभी अगर पॉसिबल हो तो क्या चीज, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। अभी देखो, अब जो लिख दिया उसको क्या जूम करें? अभी जो अभी लिखूंगा वो दिखना चाहिए। मैं अभी लिखता हूँ, देखो। सो अब क्या है, यहां से लिखता हूं, जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, सिग्नल्स दिख रहा है ये जो लिख रहा हूं? यस सर। ये डिनोट कैसे होता है, मैंने पहले भी बताया था, डिनोटेड एज एक्स एन, ठीक है। वेयर एक्स, सॉरी, दिस एन, ये क्या है इसका, ये डिस्क्रीट टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, discrete time independent वेरिएबल, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्या है, ये जो है n क्या है, दूसरा क्या है, n जो है, सो दिस इज अ इंटीजर, ठीक है। और जब हम व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, देखें जरा, यस, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, सो दिस सिग्नल xn, now this we are going to call as a, so this signal is also
also referred as a discrete time sequence. Important है. So this discrete time signal you are going to call as a discrete time sequence. Now there are different representations. I have tried to just introduce you to those representations earlier also. So let me introduce you once again. Now this xn is a discrete time sequence. Now there is some signal or the some sequence which is written as 1 2 1 0 1 like that. And एक चीज और यहाँ पे है. So there is another notation. Now it is complete. So this notation has to be there, and this denotes that this is the value that you are going to get at n equal to 0. इसका मतलब क्या है? This value you are going to get at n equal to 1. This value you are going to get at n equal to, थोड़ा सा कलर यूज करें. So this is for ये जो है, so n equal to ये क्या हो गया? 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया. So these are the values of n. ठीक है. So at n equal to -2, so this is a, so x -2 is equal to 1. Then x -1 you are going to get 2. Then x 0 you have a value 1. Then x 1 you have a value 0. Then at x2 you have value 1. So this is the interpretation. Similarly you can plot it also. जैसे कि आप इसको plot कर लो. So by using a graphical representation, suppose this is a n equal to, this is a 0 1 2 3 -1 -2 -3. So at 0 you have a value 1. At -1 you have a value 2. At -2 you have a value 1. At 1 you have a value 0. ठीक है. At 2 you have a value 1. So this is a graphical representation of the sequence, discrete time sequence xn. Okay, ये बात हो गई. So this is a discrete time signal. Now coming to the next class of signal, that is a analog and digital signal. अब मैं क्या करूं? फिर से मैं क्या करूं इसको? ये बड़ा सही काम चल रहा है मेरा. देखो पिछले वाले से कुछ मतलब तो है नहीं आपको. अब ये पता नहीं बाद में क्या दिक्कत होगी. अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, अदरवाइज मुझे सेव करके फिर न्यू ओपन करना पड़ेगा. चलो देखते हैं. यहीं से जूम पे जूम तो हो ही जाए. क्या चीज? क्या हुआ? क्या बोल रहे बालक? आई थिंक सर वो जूम करना बोल रहा होगा. जूम हो जाएगा. Yes. और जब मैं इसको मिटा रहा हूं तो मिट क्यों नहीं रहा है? अच्छा, ये भी जो है कोई बात नहीं है. चलिए कोई बात नहीं.
Okay. Now, the next kind is analog and digital signal. नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो गया यार। नहीं, एक मिनट, पेन तो सेलेक्ट करें। नहीं, पेन सेलेक्ट क्या करने की जरूरत है? ये गड़बड़ हो गया है। अब जो है नहीं मान रहा है ये बोर्ड। अरे undo, ओहो, लेकिन मैं काहे पेन सेलेक्ट करूं? गड़बड़ हो रहा, मैं इसको सेव कर देता हूं। SS क्या तारीख है? 16। किधर गया डेट? ओके, जस्ट SS 16 11 21 0। पहला स्लाइड। लिखने में फिर दिक्कत हो रही थी, जाने दो। अब मैं चला नए पे, न्यू, सेव तो कर दिया मैंने। मैं क्लोज करता हूँ इसको। यस। अब क्या है? एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग and digital signal. Now this is very important concept, because you will find that there are many courses that you are going to take where you will have an analog and a digital version, like analog electronics, digital electronics, analog communication, digital communication, and practically also you see many devices with an analog version as well as a digital version. ठीक है? तो अब ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है? सो अ सिग्नल, लेट मी जस्ट write the definition because you may require to refer it. A signal, ठीक है, अब इसमें क्या है? सिग्नल मतलब बोथ, देखो, कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम। ठीक है? A signal can be called as an analog signal if its magnitude can have any value in continuous time
continuous not time, continuous range AB where, बस यहीं तक, आई थिंक यहां तक डेफिनेशन ठीक, और थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं, यहीं अभी ही ऐड कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड और द एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड, a signal can be called as an analog signal if its magnitude can have a continuous magnitude can have any value in the continuous range में, ठीक है, मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कैन हैव एनी वैल्यू इन द कंटिन्यूअस रेंज ए बी, ठीक है। मतलब एक सिग्नल मैं बता रहा हूं कि भाई एक सिग्नल है और वो क्या है कि मान लो एक वोल्टेज सिग्नल है, मैं बोल रहा हूं, और इसका जो मैक्सिमम जो है सपोज +2 वोल्ट है और मिनिमम -2 वोल्ट, ठीक है, मैंने बता दिया। अब ये क्या हो गया, आपको ये पता है कि ये जो सिग्नल है ये दो इस वोल्टेज रेंज में ही आएगा, +2 और -2 के बीच में कोई सा वैल्यू आ सकता है। और तो एक मान लो कि अगर आप इमेजिन करना चाहोगे तो मान लो एक सिग्नल मैंने लिया और एक सिंपल मान लो मैं एक वोल्टेज सिग्नल लिया, ठीक है ना, और मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम वोल्टेज, क्योंकि ये तो देखो हमारे घर में जो भी सिग्नल है, जो भी सप्लाई सोर्स है उसको एक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसका फिक्स है, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। लोड ज्यादा करोगे तो हो सकता है कम एम्पलीट्यूड मतलब करंट ये हो वेरी हो, बट एंड द एम्पलीट्यूड में ऑल्सो बी वेरिंग बट नॉट ग्रेटर देन दिस। तो मान लीजिए ये +2 वोल्ट वोल्टेज और टाइम, ठीक है, सपोज दिस इज अ VT signal, so this is continuous signal, the amplitude range means the amplitude will be lying between a गिवन रेंज ए बी के बीच में कोई सा भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, या ए बी डाल दिया तो मान लो सपोज इसको +3 वोल्ट कर दो, इसको -2, तो मान लो कि आप ये जो है, सो दिस इज अ ए एंड दिस इज अ बी, ठीक है, तो ये जो है सिग्नल इज लाइंग बिटवीन -2 वोल्ट से +3 वोल्ट, कोई सा भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अ एनालॉग सिग्नल, ठीक है ना। और ये सिग्नल क्या है, कंटिन्यूअस सिग्नल है, ये तो आपको पता है, ठीक है। नाउ आई कैन हैव अ डिस्क्रीट सिग्नल आल्सो, समझे कि नहीं, एक डिस्क्रीट सिग्नल भी हो सकता है, इसी पे एक दूसरा सिग्नल बनाता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए एक सिग्नल इस तरह का हो, ये वैल्यू एक किसी इंटरवल पे मैं वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इतना ही है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम जो वैल्यू इसी रेंज में आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसी रेंज में आ रहा है, लेकिन ये है डिस्क्रीट सिग्नल नॉट कंटिन्यूअस। तो ये डिस्क्रीट सिग्नल हो गया, ठीक है। ये भी क्या है, दो एम्पलीट्यूड्स जो डिफाइन है उसके बीच में सारे वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आ सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है, क्या वैल्यू आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, अलग अलग। मैं एक टाइम इंटरवल मान लो, एक टाइम इंटरवल ΔT पे मैं सिग्नल ले रहा हूँ, ठीक है ना, ΔT आफ्टर ΔT2 ΔT3 ΔT, and the value that I am getting, that is x ΔT or n ΔT. So the signal I will be any signal at any instant I will be defining as x n ΔT, ठीक है ना। और ये क्या हो सकता है, ये इसकी वैल्यू जो है, ये बात पक्का है कि द वैल्यू विल बी लाइंग बिटवीन -2 वोल्ट टू +3 वोल्ट, बट इट कैन हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, इसके बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकता है। सो दिस इज अ टिपिकल एनालॉग सिग्नल,
which can be a continuous time as well as discrete time, but this is analog signal because the magnitude of the signal will be lying in a range, but it can have a large number of values. ठीक है, magnitude सबसे important क्या, any value, magnitude can have any value in the given range. So this is a analog signal. Now what is digital signal then? So the contemporary of this is a digital signal. हाँ बोलो, सही एन डेल्टा टी क्या है? क्या चीज? एन डेल्टा टी क्या था सर, फिर से बताइए. एन डेल्टा टी, एन हाँ. डेल्टा टी सम टाइम ना, सम टाइम इंस्टेंट, सपोज टी एन, ठीक है ना. पहला टाइम, पहला हो गया टी इक्वल टू 0, एन डेल्टा इज द, डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल. सपोज आप क्या कर रहे हो, आप जो सिग्नल्स ले रहे हो, सपोज यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द सिग्नल वैल्यू at different time interval. Suppose this is a, and this time interval is delta t, a small delta. तो ये क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 डेल्टा टी हो गया, 2 डेल्टा टी हो गया. चलो बड़ा करके दिखा दें, जैसे ये हो गया, ये टाइम इक्वल टू 0 हो गया, ये डेल्टा टी टाइम हो गया, ये 2 डेल्टा टी हो गया, ठीक है, ये 3 डेल्टा टी हो गया, ये 4 डेल्टा टी हो गया. So in generalized sense, I will be saying that I am looking for the value of the signal at n delta t. समझेंगे ना? तो सिग्नल क्या है, xt था, और अभी क्या होगा, जब डिस्क्रीट में क्या होगा, x n delta t. So it will be representing the amplitude of the signal appearing at n multiplied by delta t time. समझे कि it will be representing some time instant, suppose tn. बात समझ में आ गई? यस सर. चलो ठीक, ओके. अब ये पहले भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, ये जो है इसको रबड़ का साइज बड़ा करना है, ये पिछले साल भी प्रॉब्लम कर रहा था, किसी ने मुझे बताया था कैसे. हैं? अच्छा कोई बात नहीं, ये रबर का साइज कैसे बड़ा होगा जी, माउस से होता था, माउस. चलो कोई बात नहीं. ऊपर साइज लिखा हुआ है वहाँ. हैं? ऊपर सर ये सेलेक्शन सर कर लीजिए, फिर उसको डिलीट कर दीजिएगा. क्या चीज? सर ये सेलेक्ट टूल पे जो इरेज करना है उसको सेलेक्ट करके और डिलीट कर दीजिए सर, तो वो ऑटोमेटिक एक बार में. इसको मैं क्या कर दूं, डिलीट कर दूं? हाँ सर. देखें क्या है भाई, डिलीट कर दिया. वो कीबोर्ड पे भी, कीबोर्ड हाँ पे सर, भी हो जाएगा ना. कीबोर्ड से अरे भी मेरा डिलीट आप प्रेस कर. अब क्या बताएं, मेरा जो सिस्टम है बहुत तगड़ा टाइप का है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, तो मैं की जो है वो तो नीचे है. अब मैं क्योंकि इसी पे लिखना है मुझे, तो जो है आई एम यूजिंग अ टच स्क्रीन ओनली, समझे. सो दिस इज द मैक्सिमम दैट मीन्स, ये जो है एकदम हाई एंड सिस्टम है बिल्कुल. तो आई हैव अ राइटिंग पेन एंड सारा काम इसी पे हो रहा है. ओके चलो ठीक है. नाउ क्या है, वापस कैसे जाऊं, अब ये सेलेक्ट करने के बाद पेन पे कैसे जाऊं मैं अपने. सर पेंसिल वाला ऊपर जो दिया हुआ बाहर वहाँ पे अरे क्लिक कर पेंसिल लीजिए. वाला ये गड़बड़ कर दे रहा मैं, ये जो, क्योंकि ये अपने आप में टच पैड है, तो ये अपने आप पेन आ जाता है. अब ये मैं सेलेक्ट कर लिया, अब मैं किसी और को सेलेक्ट करूं, अब मैं क्या करूं, ये दूसरा लफड़ा है. ये मैं, अरे यार, टूल, पेंसिल से तो मैं चला जाऊंगा, पेंसिल. अब ये देखो, ये पेंसिल गड़बड़ कर रहा है, इसका पेंसिल जो है इस तरह का है, और कौन सा टूल है, ये क्या है, ये कुछ और है. हम्म, 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 हम्म.
सर साइज चेंज कर लीजिए पेंसिल का। सर पेंसिल की साइज यहाँ पे चेंज कर लीजिए सर। लेकिन फिर भी वो ये एक दूसरा कंट्रोल हो गया। अब वो उससे वो मजा नहीं आ रहा है मुझे। सर वो ब्रशेज में से जाकर चूज करिए। अब ये क्या दिक्कत कर रहा है? ब्रश में से चूज करूं, ब्रश में से चूज करूं, देखें अब मेरा पेन ही नहीं चल रहा है। सर कलर चूज करें, सर कलर वाइट हो रहा है कलर। व्हाइट हो गया है, ये दूसरा लफड़ा है। चलो ठीक है, अब ब्रश जो मैं चूज किया तो ये मोटा हो गया। ये मैं वापस सर आप कोई ब्रश चूज कर लीजिए उसमें से। अबे यार, गड़बड़ कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, लिखता हूँ। प्रॉब्लम क्या हो रहा है मुझे, ये अब ये एक्चुअली मुझे पेन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसे ही इसको ओपन करके आता हूँ तो, और जैसे ही मैं ये पेन टच करता हूँ, टच पेन, तो ये अपने आप जो है रिकॉग्नाइज करता है। उसका एक अलग फ्लो है। चलिए उसको करते हैं। सो ये एक्सपेरिमेंट देखिए चलता रहेगा, आपके साथ ही चलता रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से जो एकदम से रिहर्सल करके आऊंगा, वो हो नहीं पाता है, ठीक है। बाकी आप लोग कुछ ज्ञान दे देते हैं तो आसान हो जाता है। चलो ठीक है। अब देखो क्या है, डिजिटल ना, डिजिटल सिग्नल कुछ ज्यादा ही ये हो गया भाई। डिजिटल सिग्नल रेड से लिखे हम, ठीक है। अब क्या है अ सिग्नल, इसका डेफिनेशन में लिख रहा हूं। अ सिग्नल, अ सिग्नल, अब सिग्नल मतलब बोथ कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम, ठीक है, इज सेड टू बी डिजिटल सिग्नल। इसे मजा आ रहा है इससे लिखने में। सिग्नल if it can have finite number of distinct values, finite number of distinct values। अब देखिए डेफिनेशन में क्या अंतर है। अब यहाँ पे डिजिटल सिग्नल भी क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका डिस्क्रीट हो सकता है। बट व्हाट इज देयर दैट नाउ द आउटकम, द मैग्नीट्यूड विल बी ऑफ फाइनाइट वैल्यूज, ठीक है। जैसे बाइनरी सिग्नल है तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड दो ही होगा, प्लस माइनस समथिंग, या टू डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। एंड सो दैट इज अ बाइनरी सिग्नल, दैट इज डिजिटल वन। अब ऐसे भी सिग्नल्स हो सकते हैं कि इफ यू जस्ट go further, so suppose the signal is having 4 different magnitudes, ठीक है, तो 4 ही होगा, समझे। सो मे बी +5, +2, 0, -2, कुछ भी, मीन्स 4 voltage levels are defined, mean discrete voltage levels or discrete amplitudes, limited or finite number of discrete values that you can get at the output, ठीक है, or that you can get at the y-axis, ठीक है। So that is defined as a digital signal. Now still I think it is not, it should, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि ये डेफिनेशन बड़ा ट्रिकी है, और इसलिए डेफिनेशन को थोड़ा ठीक से आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मुझे लिखने में भी काफी दिक्कत हुई है। And you may not find it in some book because I have been just using it from different book. Then I gained the confidence to just modify it. Okay, so now I think it is my definition. Okay, so चलिए पेन सेलेक्ट कर लिए। अब एक देखिए टेबल में बनाता हूँ, समझेंगे ना। एक टेबल में बनाया, एनालॉग, डिजिटल,
ठीक है, और कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम। तो एक सिग्नल क्या हो सकता है, देखो, एनालॉग सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम एनालॉग सिग्नल, ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्क्रीट टाइम एनालॉग सिग्नल, ठीक है, कंटिन्यूअस टाइम डिजिटल सिग्नल, ठीक है, एंड डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल। सो सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3। अब मुझे जब कलर का ऑप्शन है तो मैं इसमें कलर दूसरा यूज करता। सिग्नल 4, 4 तरह का सिग्नल, ठीक है ना। क्या क्या नाम डाल दें, अब इसको अलग से लिखेंगे। पहला सिग्नल, फर्स्ट सिग्नल क्या हो गया, एनालॉग या कंटिन्यूअस टाइम एनालॉग, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, डिस्क्रीट टाइम एनालॉग, ठीक है। तीसरा क्या होगा, कंटिन्यूअस टाइम डिजिटल, और चौथा क्या हो गया, डिस्क्रीट टाइम डिजिटल। 4 टाइप के सिग्नल्स होंगे। अब मैं पहला एग्जांपल लूं, अगर थोड़ा सा पेन यूज करते हैं, पतला लिखना है। तो ये पहला सिग्नल, ठीक है, ये मैंने एक सिग्नल ले लिया एकदम से, कोई सा भी सिग्नल, अगर आप जो ट्रेंड हो GT। अब ये हो गया आपका कंटिन्यूअस एनालॉग, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज योर फर्स्ट सिग्नल, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लें। सो दिस इज योर फर्स्ट सिग्नल, ठीक है। दूसरा सिग्नल देखिए, क्या हो गया, डिस्क्रीट टाइम। दूसरा सिग्नल क्या है, डिस्क्रीट टाइम एनालॉग ना। अब डिस्क्रीट टाइम एनालॉग में मैं एक दूसरा सिग्नल लिया, वो सिग्नल ये है, कोई सा भी सिग्नल मैंने ऐसे लिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये सिग्नल है, अब इसमें क्या है, ये जो सिग्नल है इसमें, सो इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट परफेक्टली, सो दिस इज सिग्नल, सो दिस इज सिग्नल। सो डिस्क्रीट टाइम आपको समझ में आ रहा है, एंड सो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स अराउंड दिस थिंग, y एक्सिस इज पॉसिबल। सो थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, so any amplitude in the given range is possible. So this is a discrete time analog signal, ठीक है। So this is the example of signal of second kind. Now third kind क्या है, continuous time digital signal। तो मेरे पास जगह कम है, तो continuous time digital signal जो देखिए, ये मैं बनाता हूं, ये मान लीजिए ये, अब ये क्या है, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है ये, ठीक है। सो सिग्नल इज कंटिन्यूअस फॉर वन इंटरवल, फॉर 1 बिट इंटरवल आई एम ट्रांसमिटिंग 1 विथ 1 वोल्टेज लेवल, 0 आई एम ट्रांसमिटिंग विथ अनदर वोल्टेज लेवल। विड्थ पे मत जाइए, ठीक है, विड्थ थोड़ा सा गड़बड़ बनाया है ना, यहाँ पे 2 बिट्स एट ए टाइम, सो 1 1 इज देयर, ठीक है, 1 के बाद फिर से 1 ही ट्रांसमिट कर रहे हो, सो यू आर ट्रांसमिटिंग अ हायर वोल्टेज लेवल। तो यहाँ पे देखिए, नाउ दिस इज अ बाइनरी सिग्नल with, suppose I say that the 1 is represented with a 5 volt and 0 is represented with some -5 volt.
So only two voltage levels are there and signal is continuous. So this is the example of a digital signal. Digital signal इसलिए है क्योंकि जो magnitude of the signal has a finite value, that is only two values here. So it can be more values also, but I am not going into those complexities, but certainly you will coming across. But two defined amplitudes are there and signal is continuous. So this is a continuous time digital signal. And the same signal, suppose if I represent with a discrete, so you have a 1, suppose I have a pattern of 1, पहला क्या है 1, ठीक है, 0। अब सेम सिग्नल को मैं देखो ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ थोड़ा सा, हाँ ये हो गया 1, मैंने पहले इंटरवल बस एक वैल्यू आया, बाकी जगह 0 है, फिर यहाँ पे 0, ये पूरे इंटरवल में बाकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 ले लिया, फिर 1 ले लिया, ठीक है, फिर 0 ले लिया, 0 ले लिया, फिर 1 ले लिया। So this is again 1 0 1 1 0 0 1 and so on. Now there is a difference between these two signals. Now this is a discrete, but still it is having two values only. एक देखो minus, suppose again minus 5 volt or plus 5 volt. So signal is discrete, but it is having the only finite values on y-axis, and which are only two values in this case also. So by just keeping these four signals in your mind, because I know the top term is very confusing, and you will be asked this question in many subjects. Okay? What do you mean by continuous time? What is discrete time? What is difference between a digital signal and a discrete signal? That is a very pet question. What is difference between a digital signal and discrete signal? Okay? So I have tried my best to represent these confusing terms. So what you have to do, you have to just keep these four signals, pictorial representation of these signals in mind, and then you can just make yourself clear these four signals. Okay. Okay, so I think I will stop here now. So take the notes of this and let me save it also. So this is a signal system. The date is a 16/11/21, and this is a slide number 02. Okay, and let me save it. Okay. Okay, so let me go back to let me take the attendance. Any question from your side? Anything that you would like to know or ask? So okay, so I have taken the attendance, and I think your problem of internet connectivity
has been communicated well, and I think some solutions have been worked out. And I think you have visited some of your labs. So try to know your the location of your labs, and you will be, I think you will be having some solution regarding your internet connectivity maybe next week. That's all. So anything from your side? Should I conclude? Excuse me, sir. हाँ बोलो. हाँ बताओ Sir, भाई. yes, sir. Where will you upload these photos? फोटोज मैं अपलोड नहीं करूंगा. मैंने पहले ही 3 बार बोल दिया था कि नो. अब ये जो है आज मैंने ये किया था, सो ये वीडियो लेक्चर में आएगा ये. इट मस्ट बी कमिंग. ठीक है. अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड दिस फोटो बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू सिट विथ योर notebook. You have to note it down. And other thing is that it will be coming in the video lecture. So somebody has to just confirm me about the appearance of this board contents. It must be coming. Okay. Okay. But somebody has to just confirm me in the next class. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and then you must be aware that if some of you are looking for this supplementary exam, so notification is there, and the dates for the registration was open on I think 15. Today is 16, and 17 will be the last date. So I think you are well informed about the notification of your supplementary exams. Means some of you may be opting for that. Is it communicated to you? Yes, sir. Okay. Actually, those who are giving supplementary exam, they know. Actually, we don't have any idea. Acha. So again, means that's it is my responsibility to just pass on the message through different modes. So that's why I was just asking it. Fine. Okay. So I think you all are settled here in the campus. That's very good. Can you report? Can somebody just update me how many students are have not come to the campus yet from your batch or from this class? Anybody is having any idea? Sir, no idea as of now. Okay, maybe in your this thing your lab classes it will be more. Most probably, most of the students have come to the campus. Yeah, some of the students maybe from the abroad, they may be having some issue. Means, just try to know if you can just come out with some data. Otherwise, in the lab classes, it will be, I think, clear. Okay, so the class is concluded. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.